Purvodaya to Bharat Uday, New India's development journey. And at the center of this journey is the land of the Astalakshmi, the 8 states of Northeast India, and its lifeline, Indian Railways. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, railway connectivity in the Northeast is reaching new frontiers. Record budget allocation of 11,486 crore rupees has been made for railways in Northeast in 2026 to 2027, more than 5 times of the amount during 2009 to 14. On 13 September 2025, Aizawl, the capital of Mizoram, got connected to the national rail network. The 51-kilometer Bairabi-Sairang rail line is actively contributing to the development of Mizoram. Direct train services from Sairang to Delhi, Kolkata, and Guwahati have improved access to education, healthcare, and trade. Tourism in Mizoram has received a major boost. Movement of railway freight cargo has brought down costs of commodities in Mizoram's markets and removed traffic jams on highways. Introduction of India's first Vande Bharat Sleeper Express between Guwahati and Kolkata has added a new chapter in railway passenger services in the region. Railway stations are also undergoing a major transformation. 60 railway stations in the Northeast are being redeveloped as Amrit stations. Today, marking yet another milestone in Northeast India's journey from frontier to frontrunner, a new train service is being introduced. The Sairang to Silchar passenger train will improve rail connectivity between Mizoram and the Barak Valley of Assam. It will provide daily commuters, students, and people with medical needs a safe, fast and comfortable journey and open up new pathways for improved people-to-people connectivity. Today, new passenger facilities at Guwahati railway station are also being inaugurated. Modern sleeping pods, lounge facilities, multi-cuisine restaurant, and safe, comfortable and hygienic resting spaces. These facilities will improve passenger comfort and provide railway passengers at Guwahati a refined and enriching travel experience. With visionary guidance from Prime Minister Shri Narendra Modi, the Northeast is achieving unprecedented levels of development and connectivity, as a developed Northeast is a pre-undergoing for a developed India. आज इस शुभ दिन पर उपस्थित मिजोरम के माननीय मुख्यमंत्री लालदू होमा जी, मेरे साथी श्री परिमल शुक्ला वैद्य जी, साथी श्री कनाड पुरकायस्था जी, आइजॉल में ऑनरेबल एमएलए श्री लालवेन चुंगा जी, रेलवे के सभी साथी, उपस्थित जीएम साहब, डीआरएम साहब, उपस्थित सभी अधिकारी और मीडिया के सभी साथी, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबको जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए जो काम किया है और एक फोकस लाए हैं और बहुत सारे फंड्स देकर अच्छे से काम को एग्जीक्यूट करा है, वो सब आप सबको ज्ञात है। मैं फिर भी जानकारी देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी विश्वास करते हैं पूर्वोदय के विकास में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिलीव्स दैट for Viksit Bharat, for a developed country, the entire northeastern state should be developed along with. इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए हिस्टोरिक रेलवे बजट दिया है। 11,486 करोड़ रुपीस के बजट से बहुत सारे काम तेजी से हो रहे हैं। टोटल 72,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का। दिस विल टोटली चेंज द वे आवर पीपल आर citizens in the northeastern states. They travel, they communicate, they meet their relatives, and they do their business. The service which is started today, this is a service between Silchar and Sairang. Silchar एक कॉमर्शियल हब है नॉर्थ ईस्ट में, असम में, जो कि त्रिपुरा को, मिजोरम को, मणिपुर को, सबको सर्विस करता है। इसलिए बहुत जरूरी था कि सिलचर के साथ सायरंग का एक कनेक्टिविटी हो, और जो कुछ ही महीनों पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सायरंग की रेलवे कनेक्टिविटी इनॉग्रेट किया था, उसके बाद से कई स्टेप्स लिए गए हैं। जो नई गाड़ियां स्टार्ट की थी, दे आर नाउ स्टेबलाइज्ड, ऑपरेशन हैज नाउ बिकम वेरी स्मूथ, मेनी चैलेंजेस हैव बीन overcome already.
and overall we are finding that people are giving a lot of positive feedback on the connectivity to Mizoram. And today's service will add one more dimension to the benefits that people of Silchar as well as people of Mizoram will be getting. Tourism will increase. It will be easier to buy the goods from Silchar, bring them to Mizoram, and also supply the goods manufactured in Mizoram to the market in Silchar. Today, one very interesting facility has been inaugurated at Assam. I hope that will be liked by the people. Overall, if you look at it, असम और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी देने के लिए बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और साथ ही साथ कई पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हुए हैं। इन 11 वर्षों में करीब 1900 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बने हैं। श्रीलंका के टोटल रेल नेटवर्क से ये ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। असम का इलेक्ट्रिफिकेशन 98% हो गया है और बहुत जल्दी 100% हो जाएगा। टोटल 2101 करोड़ के कॉस्ट से, इन्वेस्टमेंट से 60 स्टेशंस को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है। वंदे भारत स्लीपर जो कि बहुत ही एक अच्छी सर्विस है, हाईली अप्रिशिएटेड सर्विस है, इसका इनॉग्रेशन भी आसाम से हुआ। आसाम और कोलकाता को जोड़ने वाली ये ट्रेन है। और अभी हाल ही में बजट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन लाने का फैसला किया है। वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन आएगी तो भविष्य में आने वाले समय में गुवाहाटी तक जाने का भी एक रास्ता इससे खुलता है। ओवरऑल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी पूरी तरह से चेंज होगी। भूटान के लिए कोकराझार से गेलफू न्यू लाइन बनेगी, बनारहाट से समस्ते न्यू लाइन बनेगी। फिर नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी शिवोक से रैंगपो का काम बहुत तेजी से चल रहा है। कोकराझार से गेलफू जो मैंने आपको बताया, इसका काम जल्दी चालू होगा। लैंड एक्विजिशन, परमिशंस वगैरह सब चल रही है, प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है। वैसे ही दीमापुर से कोहिमा का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। जिरीबाम से इम्फाल में बीच में कुछ समय तक दिक्कत आई थी, अब काम उसका वापस चालू हो गया है। विशेषकर जो नोने पर्वत के पास में एक लैंडस्लाइड हुआ था बड़ा, उसके बाद में काम थोड़ा रुक गया था, अब काम वापस चालू हो गया है। ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रेलवे का बहुत फोकस है और इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। कई नई अमृत भारत सर्विसेज स्टार्ट हुई है, वंदे भारत सर्विसेज है। और अगर आप देखें कि 10-12 वर्षों पहले नॉर्थ ईस्ट को एक निग्लेक्टेड एरिया माना जाता था, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं नॉर्थ ईस्ट में इतनी बार गए हैं और हर एक मंत्री को, सभी को फोकस करने के लिए हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का ध्यान देना चाहिए। तो उसी कड़ी में आज ये नई सर्विस चालू होती है। विशेषकर मिजोरम और असम के सभी निवासियों को, शिलचर के, आइजॉल के, भैरवी के, सारंग के सभी साथियों को मैं बहुत शुभकामनाएं।